Hello friends, welcome to Gyan for Media and I am your friend Kritika. I hope you all are doing well. Friends, I am extremely sorry for delaying in uploading the videos. It's been few months since I have not uploaded any video and that is because I was on a maternity break. But now that we have resumed, I'll be frequently posting with the videos that will help you prepare for your upcoming examination. And I hope that you all are doing well in this time of Corona scare when we all are facing the pandemic, and it's been almost a month since we are all locked up in our houses. And I think it is the best time when you can utilize this time for self study. So to share tips on how you can divide your day, how you can divide your 24 hours for your self-study. We have with us Professor Neerja Agarwal, who is an emeritus professor in a university. We welcome you, ma'am, to our channel Gyan for Media. Thank you, Kritika. To introduce her, I would like to tell you that she has over a 30-year of experience in as an academician. So I thought that she would be the best person to guide you and to share tips on self-study. So I would like to ask you that how students can prepare for competitive examination at this time when they have full 24 hours in hand, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर में बैठ के, तो कैसे वो अपना टाइम यूटिलाइज करें और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर ऑल अ यंग लॉट, they are all students who are preparing for different competitive exams, so I would like you to guide them through this. Yes, Kritika, it is a very good opportunity for the students because they don't have the pressure of attending the classes. They don't have to get ready and reach in time to the college, university, and study there. So they can utilize this time. This is the golden opportunity. I must say this is the blessing in disguise that they can study at home, at their home, and they can fully utilize. They should not be in the dilemma that when it is going to open, when I'm going to college, to the university and study. Instead, they can study at home. So Right. this is a very good opportunity, and they have the whole syllabus in their hand, and they have to decide what to study first and what to study next. So I must say that they should not go for a long term goals. They should make small goals, like 2 hours goals, and the whole course they cannot complete in one day or in 2 days. So they can complete single topic in 2 hours. So they can make 2 hours goals, and after 2 hours they can take a break, and instead of going for a video, looking for video chats or any other recreation, they should go for some other, this I will tell you. ओके, सो बेसिकली 2-2 घंटे के शॉर्ट गोल्स बनाएं और हर 2 घंटे में आप लोग ब्रेक ले सकते हैं टू रिलैक्स योर माइंड एंड टू रिलैक्स द आइज़, क्योंकि प्रोफेसर अग्रवाल आजकल स्टूडेंट्स नई जनरेशन है, सो दे आर मोस्टली स्टडिंग ऑन देयर लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स, यूट्यूब या दूसरे ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। तो इसलिए आप लोगों को हर 2 घंटे के गोल्स बनाने हैं। ये नहीं सोचना है कि आप पूरे दिन में इतना कोर्स कवर जी, करेंगे, आप छोटे yes, छोटे गोल्स बनाएं हाँ बिल्कुल। और हर 2-2 घंटे में 15-15 मिनट का आप ब्रेक लें, जिसमें कि यू कैन डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी और यू कैन जस्ट रिलैक्स योर माइंड। तो और कुछ आप बताना चाहेंगी कि किस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं टू मेंटेन देयर गुड मेंटल हेल्थ? Yes, after studying for 2 hours, students may be studying books, maybe studying net or laptops.
So they need to take rest, give rest to their eyes, and they can play some games in the meantime, but refrain themselves from video games. So it's Okay. better they can play Ludo, Snake and Ladder, and Sudoku is very good for brain Right. uh, polishing. And they can take any hobby also. They can take singing, painting, or story writing in the meantime. They can write their experiences as well. This will refresh them for further studies. जी, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं प्रोफेसर, ये 15 मिनट के टाइम में तो नहीं हो सकती हैं। ये तो तब हो पाएंगी जब मे बी आप दोपहर के बाद शाम को पढ़ाई करने से पहले आपने 1 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया। तो उन 15 मिनट को स्टूडेंट्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ आप बताइए। Uh, Basically, to start with, they can do some stretching exercises like yoga, breathing exercise for राइट। 15 minutes, and then they start reading again. राइट। Then they study for 2 hours राइट। before lunch, and they will do again some yoga exercise like Bhramari Pranayam, which is good for concentration, राइट। for memory power, increasing memory power. So these are short exercises which they can start to begin with. Then after that, after lunch, when they feel like they can play some games, then those games which I mentioned, they can play those games. राइट। एंड देर आर सम गेम्स जो हम अपने बचपन में खेलते थे, कैरम है या स्क्रैबल है। क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते, आउटडोर गेमिंग आप कर नहीं सकते, यार दोस्तों से आप मिल नहीं पा रहे हैं, लाइब्रेरी यू आर नॉट एबल टू विजिट लाइब्रेरीज वेयर यू कैन मीट एंड चैट विद योर फ्रेंड्स। तो क्या करें कि हम अपने आप को एक्टिव भी रखें, क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ बुक्स या लैपटॉप या सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहें। पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है आपका माइंड फ्रेश होना। सो फॉर दैट यू नीड टू एंगेज इन सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो जैसा प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि आप लोग गेम्स खेलिए जो आपके बचपन की गेम्स हैं, जैसे लूडो हुआ, स्क्रैबल हुआ विच इज़ अ वेरी गुड वोकैबलरी गेम, या फिर एक ब्रेन बीटा करके गेम आता है। अगर आप अकेले हैं घर में एंड यू डोंट हैव सिबलिंग्स या आपके आस पड़ोस के फ्रेंड्स नहीं हैं, सो यू कैन प्ले ब्रेन बीटा विच इज़ अ सोलो गेम। यू कैन ऑल्सो प्ले कार्ड्स इफ़ यू वॉन्ट टू। एंड बट ये सारी चीज़ें जो हैं इट विल टेक योर 1 आवर, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आपका लग जाएगा, लेकिन इट विल ऑल्सो गिव यू यू नो बूस्ट, इट विल मेक यू फील फ्रेश। और इसके अलावा मैम ने बताया कि आप लोग 15 मिनट का जो ब्रेक लेंगे उसमें आप सम सॉर्ट ऑफ योगा, सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यू कैन डू, एंड you can also just roam around your house, just see what other people are doing. You can drink water, you can wash your face, wash your eyes, क्योंकि ये ब्लू स्क्रीन रेडिएशन वी ऑल नो हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर आइज, राइट मैम। तो 15 मिनट में आप लोग ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और बात रही 2 घंटे की, विच इज़ आर एक्चुअली वी वांट टू टेल यू कि हाउ यू शुड डिवाइड योर डे। तो उन 2 घंटों में मैम जो बच्चे हमारे पढ़ाई करेंगे, तो उसमें कैसे ये अपना छोटा, आपने कहा कि 2 घंटे के शॉर्ट गोल्स बनाइए, तो उसमें कैसे ये अपना डिवाइड कर सकते हैं? क्या कोई टाइम टेबल बना ले कि हर 2-2 घंटे में हम इतने चैप्टर्स या इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे? हाँ बिल्कुल, 2-2 घंटे के मतलब है कि आपको एक कोर्स पूरा करना है पूरे दिन में। तो आप ने उस कोर्स के कुछ टॉपिक्स चूज़ कर लिए और उन टॉपिक्स पर आपने अच्छे से स्टडी करी 2 घंटे के लिए, और फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दूसरे टॉपिक पे आ गए। इस तरह से अगर हम 2-2 घंटे के 5 सेशन भी करते हैं तो 10 आवर्स की स्टडी होती है। तो दैट मीन्स वी कैन कंप्लीट 5 टॉपिक्स एट अ लेंथ, राइट। और उसमें आप अपना फुल 100% दें। और इस चीज़ का ध्यान दें कि
जो आपका मोबाइल है उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे बीच में कभी आपका व्हाट्सएप का कोई चैट मैसेज आ गया, या इफ़ यू राइट। गेट अ मैसेज फ्रॉम ऑन ईमेल, सो राइट। वो उसको ना देखें। हाँ, वो जो आपका 15 मिनट का ब्रेक हो उसमें आप देख सकते हैं कोई, मे बी Yes. देयर इज समथिंग So it is इम्पॉर्टेंट। very important that you should not distract from your studies, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल स्टूडेंट्स मोबाइल पे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के दे आर प्रिपेयरिंग। अब स्टडी पैटर्न चेंज हो रहा है, सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंसी नहीं है, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया एंड द ई बुक्स दैट आर अवेलेबल। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फ़ोन में आपके पास DND मोड होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, दैट यू कैन स्विच ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस ना दिखें, सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन, अगर आपने इंटरनेट ऑन कर रखा है तो नेचुरली व्हाट्सएप का मैसेज तो पिंग हो गए, वी ऑल नो दैट। एंड जब आप मैसेज देखेंगे तो आपको टेम्पटेशन होगा टू ओपन दैट मैसेज एंड जस्ट गो थ्रू इट, तो दैट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। तो मैम का कहना है कि आप उसे रिफ्रेन करें, आप चैटिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। 2 घंटे की पढ़ाई का मतलब है कि स्ट्रिक्टली 2 घंटे यू हैव टू स्टडी, एंड बाद में जो आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसमें आप यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ मूड लिफ्टिंग। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, you can reply on chat. So that is one thing. And another thing मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि अभी हमें पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, तो आपने बात की शॉर्ट टर्म गोल्स की, तो क्या जो टाइम टेबल बच्चे बनाएंगे वो हर दिन के हिसाब से होगा, या 3 मई तक का, या 1 महीने तक का पूरा चार्टिंग कर सकते हैं कि हम 1 महीने में इतना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर पूरे महीने का गोल बना लेंगे तो आपके पास हर दिन का एक एक कोर्स होगा या सब्जेक्ट होगा जो भी आपने पढ़ने का सोचा है। और आपके पास सपोज़ आपके पास 15 दिन है, तो आप 15 दिन में अगर 10-10 घंटे हर रोज़ स्टडी करते हैं तो 15 दिन बहुत अच्छा समय आपके स्टडी में काम आएगा। और एक स्टूडेंट्स को और मेरा सजेशन है कि उनके कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज़ होंगी जो वो पढ़ाई के दौरान नहीं पूरी कर पाए, तो उस हॉबी को वो यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक्स। Those 15 minutes break, they can utilize their singing skill, their writing skill. They can draw something, paint something. So these are another ideas they can utilize during the lockdown period. राइट। और मैम एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जैसे जो NTA का नेट का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर वन। तो इसमें क्या बच्चों को किसी तरह से सैम्पल पेपर्स वो लगाएं, जैसे कि 2 घंटे में एक टॉपिक कवर हो गया, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में उससे रिलेटेड वो सैम्पल क्वेश्चंस लगा लें? बुक्स हाँ अवेलेबल हैं उसके बिल्कुल, लिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ही आवश्यक है कि जो भी आप पढ़ते जाएं उसके सैम्पल पेपर ज़रूर लगाते जाएं। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट तैयार कर लिया, आपको पता नहीं कि आपको कितना याद है, तो आप उसके लिए समय निकालिए और सैम्पल पेपर अवश्य लगाएं। और मुझे लगता है मैं मैम की बात में एक बात ऐड करना चाहूँगी कि सैम्पल पेपर्स क्योंकि ऐसे अवेलेबल नहीं हैं, बट यू हैव सर्टेन बुक्स विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस कि कौन कौन सी बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर मास कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट। तो क्योंकि बुक्स बहुत लिमिटेड हैं, तो आई थिंक यू शुड गो थ्रू दी प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हाँ जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप उन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक बनाइए हर ईयर का या हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का। अगर आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी, मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी तरह से की थी, क्वेश्चन बैंक बनाया था हर टॉपिक का, और फिर
पढ़ने के बाद वो टॉपिक उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको गो थ्रू किया, एंड फॉर ईच ऑप्शन आई यूज टू स्टडी ईच ऑप्शन कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कहाँ से क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है। तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन दैट सेंस ऑल्सो। तो मैम मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अब क्योंकि लाइब्रेरीज़ बंद हैं और बच्चों के पास बुक्स इशू कराने की सुविधा फ़िलहाल नहीं है। जिनके पास बुक्स हैं वेल एंड गुड, वो अपनी बुक्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में कोई कुछ टिप्स आप शेयर कर दें फॉर अ बेटर लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। हाँ बिल्कुल, मेरा सजेशन है कि जो आप यूट्यूब देखते हैं तो वो सिर्फ आप सुन के और ये ना सोचें कि हाँ मुझे याद हो गया। तो आप यूट्यूब को सुनिए और अपने नोट्स बनाते जाइए, पॉज करिए, फिर से सुनिए, फिर नोट्स बनाइए और उन नोट्स को बार बार गो थ्रू करिए, जिससे कि आपको वो मैटर जो समझ में नहीं आता था पहले वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिख के नोट्स अवश्य बनाएं और उन नोट्स को आप अगले दिन रिवाइज कर लें। पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछला अवश्य रिवाइज करें, जिससे कि वो उनको आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे याद आएंगे। राइट। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज़ दैट कि आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखित जो नोट्स होते हैं वो आपको जल्दी याद होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपने वीडियोस देखे, आपने सुना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ब्रेन टू रिटेन दैट नॉलेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन अगर आप उसको कहीं नोट डाउन करते जाएं और अपने हाँ नोट्स बनाते जाएं, जैसे कि मैम बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है नोट्स बना के पढ़ने का, तो अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में वो नोट्स बनाएंगे और उसको वापस से, जैसे मैम कह रही हैं कि दोबारा से अगले दिन रिवाइज करिए जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो दैट विल रिटेन इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी अबाउट हाउ टू self study at the time of lockdown, and I'm very thankful to you ma'am for giving us your time. Thank you so much for giving me this opportunity to talk to the students, to the younger generation, to the younger mass who needs better future, better guidance and learning skills. Right. Thank you so much ma'am. And guys, if you liked the video, please do press the like button and do share it among your friends ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। And don't forget to subscribe ज्ञान फॉर मीडिया ताकि आपको मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना पड़ेगा, विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर